गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। भारत का जंगी जुनून उरूज पर है, लेकिन पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता शब भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की संगीन खिलाफ वर्जी की। भारतीय फौज की जानिब से कियानी और मिडिल सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाक फौज ने भारतीय जारियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया, जिससे दुश्मन खामोश हो गया, मगर शायद ये खामोशी फ़िलहाल है। जवाबी कार्रवाई से दुश्मन के मुतअद्दिद मोर्चे भी तबाह हुए। इस कार्रवाई में वाक़ भारतीय फ़ौज की चेक पोस्ट को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। इसी तरह हमने ये भी देखा कि फ़िज़ाई महाज पर भी भारत को मुँह की खाना पड़ी है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की फ़िज़ाई हदूद में भारत के 4 रफ़ेल तैयारे हमने देखा कि वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। जैसे ही पाक फ़िज़ाइया ने जवाब में उड़ान भरी तो उनको फ़रार के अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आया। पाकिस्तान भारतीय जारियत को पूरी दुनिया में बेनकाब कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से रब्ता किया है और उनको सूरत हाल से आगाह किया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को भारत के जारहाना अज़ाइम से आगाह कर दिया है। लेट्स वॉच दैट। No other country has sacrificed as much as Pakistan due to terrorism. Pakistan has been a victim of terrorism that is planned, orchestrated and sponsored by India. A durable solution for India lies in focusing on its internal problems instead of raising fingers on other countries. India has been deploying the allegations of terrorism to achieve a strategic objective for long. India made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence and with such dramatic speed. Pakistan has nothing to do with Pahalgam incident. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of the lower riparian will be considered as an act of war. The world leaders I have been speaking to in the last few days, Pakistan will not be the first one to resort any escalative move. In case of any escalative move by the Indian side, we will respond very strongly. तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम वाक़े के मुकाम और 10 मिनट बाद पाकिस्तान मुखालिफ FIR दर्ज होने पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। उन्हें भी देखिए। The allegation is that it's the Pakistan-based so-called terrorists did this incident. The incident, as per the FIR, was from 13:50 and it is 14:20 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. That the FIR lodged after 10 minutes, the intelligence or the security was so flat that the incident happened, there was no intelligence, but within 10 minutes they had such complete intelligence that they were established that it was across the border handlers. And secondly, it says over there that there was indiscriminate firing. Then the electronic media also comes into play. At 3:30, the electronic media is also saying that it's the Pakistan that is being done. So allegations of Pakistan being responsible started coming within minutes while the evidence is still awaited. There are no Islamic terrorists, there are no Christian terrorists, and there are also no even Hindu terrorists, because terrorists have no religion. भारत के जंगी जुनून से पाकिस्तान ने पहले ही दुनिया को आगाह कर दिया था, जिसकी वजह से भारत बड़ी जारियत से फ़िलहाल कतराता नजर आ रहा है। कल रात वज़ीर इत्तलात अता तारर ने खबरदार किया था कि भारत 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। लेट्स वॉच इट। इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साज़ा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने के नाते सच्चाई का पता लगाने के लिए खुले दिल से आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया। कल हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी और दीगर तज्ज़ियाकारों ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, बल्कि करने जा रहा है। ये भी देखिए। फिजिकल अटैक करने जा रहा है भारत, एंड हाउ विल वी रिटेलिएट? कुछ होगा, जरूर होगा। इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में दे कैन स्टार्ट विद द आर्टिलरी शेलिंग है और मर्डर फायर है, जो सीज फायर है उसको खत्म कर सकते हैं। सेकंड, माइनर इंकर्जन्स हो सकती है, रेड वगैरह हो सकता है। और थर्ड पॉसिबिलिटी कुड बी ए सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक, एंड अदर पॉसिबिलिटी कुड बी द फायरिंग ऑफ मिसाइल। तो वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी। उन्होंने अपनी घर में जो कैलकुलेशन करनी थी कर रही है, एंड दे आर टेकिंग द वर्ड ऑन बोर्ड कि हम क्या कर सकते
सकती हैं या क्या करना है। सो दिस समथिंग एमिनेंट जो नज़र आ रही है। मेरे ख्याल में हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। इट विल बी अटैक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान भारत के हमले के लिए तैयार है। अमूमी हालात में दोनों ममालिक को जौहरी हमले से गुरेज करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे वजूद को ख़तरा हुआ तो हम जौहरी हथियार आजमा सकते हैं। उन्हें भी देखिए। पाक भारत जंग के दहाने पर मामलात नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वाडा साहब, उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। इस कदर टेंस माहौल हो चुका है तो अब वॉर ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया बहन। देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो थ्रेट एनालिसिस की जाती है, थ्रेट प्रिपरेशन की जाती है। तो दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो छोटे छोटे थ्रेट से लेकर बड़े से बड़े थ्रेट की आप तैयारी कर लेते हैं। और अभी तो मीडिया की हाइप उन्होंने क्रिएट की, इंडिया ने एक बकवास और एक घटिया नैरेटिव उन्होंने किया है कि पहले क्लिंटन के टाइम पे भी ये ड्रामा किया था, इस बार भी यूएस डेलीगेशन का ड्रामा किया, एविडेंस दे नहीं रहे। हम तो रेडी हैं, अगर हम हैं तो फिर आप एविडेंस पेश करें। और दुनिया भी रिजेक्ट करी है उसको। तो टेंशन या स्ट्रेस मैं कहूँगा, ठीक है, ये ज़रूर मौजूद है और हम उसका भरपूर जवाब देने को तैयार। हम पे मुसल्लत की तो हम फुटबॉल बना देंगे इनकी फ़ौज की गर्दनों की। हम बड़े क्लियर हैं इसके अंदर, ठीक है जी। पानी के ऊपर हुआ तो पहला अटैक हम करेंगे, डिस्ट्रक्शन हम शुरू करेंगे, तबाही हम मचाएंगे, डेंजरसली एंड लीथली घुस के मारेंगे। जहाँ कहाँ से घुसेंगे, कहाँ फटेंगे, इनके बाप दादा को नहीं पता चलेगा। जिस तरह हमने पिछली बार इनके साथ किया था। पिछली बार तो अभिनंदन को हमने मूँछे मोड़ के, हाथ में पकड़ के, चिपड़े मार के, चाय पिला के भेजा था। इस बार नहीं होगा। और देखिए, मैं तो उस टाइम पे मिनिस्टर भी था और एक 2019 उसमें एक हिस्टोरिकल मोमेंट है मेरी ज़िंदगी की, जिसको मैं सारी ज़िंदगी चेरिश करूँगा। अगर मैंने इंडियन झंडे को अपने पैर के नीचे रोंदा है और पाकिस्तान का झंडा गाड़ा है, और आज भी मैं तैयार हूँ कि वही सिचुएशन आएगी कि हम पैर के नीचे रोंद देंगे इसके झंडे को, इंडिया के, और अपना झंडा गाड़ेंगे। और देखें, हमारी जो एयरफोर्स है ना, वो बड़ी तगड़ी है। फ़ौज तो है ही हमारी तगड़ी, लेकिन एयरफोर्स भी फिश करती है, मछली पकड़ती है, निकालती है, फिर मारती है। तो आप देखें, कल भी उनके जहाज़ आए हैं तो हमारे जहाज़ फ़ौरन आगे मॉनिटरिंग के ऊपर तो भाग गए, ठीक है। तो वो हमें उन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सिक्योरिटी का मामला है वो अल्लाह की फजल से एक काबिल चीफ के हाथ में है। काबिल चीफ मैं क्यों कहता हूँ कि देखिए, चीफ बहुत सारे आते हैं, अच्छे होते हैं, मेरिट पे होते हैं, लेकिन काबिलियत हर इदारे के अंदर, हर शोबे के अंदर बहुत कम मिलती है। 15-20 साल में एक काबिल आदमी आता है। काबिल का भी उन्होंने हाइप क्रिएट की, गालियाँ दी, शोर शराबा किया, ड्रामा किया। हमने जवाब में गालियाँ नहीं दी, तोप नहीं बरसाया, गोलियाँ नहीं चलाई। हमने इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली पैसे से उनको हर्ट कर दिया। जब 1.21 बिलियन की एक्सपोर्ट, उनकी इनडायरेक्ट ट्रेड ख़राब कर दी, जब हमने अपनी सरजमीन मना कर दी, एयर स्पेस बंद कर दी, तो आपने मेरी बिजली बंद कर दी, आपने मेरा फ़ोन बंद कर दिया, आपने मेरी गाड़ी का पेट्रोल बंद कर दिया, मेरी रोटी खाना बंद कर दिया। मैं तकलीफ में आ गया। तो हमने एक्चुअली उनको तकलीफ दी है। तो ये बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट मूव थी चीफ की। और फिर डर किस चीज़ का, परेशानी किस चीज़ की, जब आपके पास कॉन्फिडेंट चीफ है, पॉजिटिव चीफ है, वेल प्लान्ड है, एग्जीक्यूटर है, कॉन्फिडेंट है, परसेप्शन है, कॉन्फिडेंट भी है, परसिस्टेंट भी है, कंसिस्टेंट भी है, एग्जीक्यूटर भी है, फोर्स भी मौजूद है, वेल प्लान्ड भी है, वेल ट्रेन्ड भी है। वो व्हाई एंड व्हाट टू वरी, परेशानी किस चीज़ की हमें, ठीक है जी। क्वेश्चन इज कि 2019 में भी आप थे, अभी भी हैं। ऑब्वियसली जनरल आसिम मुनीर अब हैं, उस वक्त नहीं थे, उस वक्त जनरल बाजवा थे। ज़रूर आप पर्सनैलिटी कंट्रास्ट करें, और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त शहबाज शरीफ हैं, उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर। देखिए अभी ना मैंने अपनी सियासत सस्पेंड की हुई है। लेट मी पुट इट दिस वे, मैं अभी सियासत नहीं कर रहा। इसलिए सियासत नहीं कर रहा कि मेरा मुल्क है तो पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो फ़ौज है। अभी मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप मुझसे यूँ पूछेंगे तो मैं तो स्टेडियम से बाहर बॉल मारूंगा गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन ये टाइम है मुत्तहद होने का, यूनिटी का, कंसेंसस का, इंडोर्समेंट का। वी स्टैंड यूनाइटेड, हमारा कॉज है पाकिस्तान। पाकिस्तान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अभी मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करूँगा, हम तितर बितर हो जाएंगे। इसका एक्सपेक्टेशन करेगी इंडिया। तो मेरा तो आज भी मशवरा ये है, गवर्नमेंट को मशवरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब का एक गोल्डन सुनहरी मौका है कि वो अपने स्टेट्समैन का, एक प्राइम मिनिस्टर का, एक डेमोक्रेटिक लीडर का बाहर निकल के काम करें और सबको साथ इकट्ठा कर लें। मैं कहीं नहीं कह रहा कि आप किसी को समेत पे के इंसाफ के कि आप उनको जेल से माफ़ी कर दें या उनको फांसी की सज़ा ना दें या उनको सज़ा दे दें या उनको प्राइम मिनिस्टर बना दें या गले लग जाए, हार बना दें। वो तो मेरा आइन और कानून है मेरे पाकिस्तान में मौजूद। ये मेरे घर का मामला है। इस घर के अंदर जो मेरे लिए फैसला होगा मुझे कबूल है। मुझे फांसी चढ़ानी है, मुझे उम्र कैद करनी है, मुझे छोड़ना, जो भी है पाकिस्तान का आइन और कानून डिसाइड करेगा। लेकिन जब मेरे मुल्क को कोई बाहर से देखेगा, मेरे घर को कोई बाहर से देखेगा, तो वी स्टैंड यूनाइटेड। और यही मैसेज सब दे रहे हैं और इसी तरीके से सब अपनी फ़ौज का खड़े हैं। हमें तो एक मौका दे दिया हिंदुस्तान ने कि हम सब ने अपनी यकजहती अपने मुल्क और अपने फ़ौज का दिखा दी। ठीक है, इसमें एक मौका है कि आप 25 करोड़ 25 करोड़ लोगों की इंडोर्समेंट करा दें। कि एक होती है वॉर कन्वेंशनल,
तो अब गोला बारूद बॉर्डर गोली बम शम सब मारेंगे, वो ठीक है, हम जीत जाएंगे उसमें। एक होती है परसेप्शन की वॉर, इम्प्रेशन की वॉर, मोरालिटी की वॉर, एथिक्स की वॉर, कॉन्फिडेंस की वॉर, यूनिटी की वॉर, कंसेंसस के साथ सबका इकट्ठा होना, पूरी दुनिया को एक मैसेज देना, एक इम्पैक्ट देना। आपने कहा आपने हुकूमत को APC बनाने की तजवीज़ थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ उसका। देखिए, मैं मशवरा दे सकता हूँ, अगर कोई बेअक्ली का काम करता है मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन आप अगर मुझे कहेंगे मुझे नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तानियत पर कोई डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तानी के ऊपर डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है। दाई साहब की डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है। बेनज़ीर साहब के ऊपर डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है। बिलावल साहब के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं पाकिस्तानियत तो किसी की क्वेश्चन नहीं कर रहा, बस सारे पाकिस्तानी, जेब कतरा भी जो अपनी गलती करके जेल के अंदर है वो भी पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तान फौज का खड़ा है, अपने दुश्मन के खिलाफ खड़ा है, उसका राइट तो नहीं आप ले सकते। इसी तरीके से अगर मैंने तो देखे एक आदमी का काम किया हुआ है, मैं तो हक मेरी जो मेरी प्रिंसिपल स्टैंड है कि खान ने ये किया, खान ने वो किया, खान ने तबाही कर दी, खान ने बेगम के बारे में जनरल फैज़ का मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया, ये कर दिया, खुद जलील ख्वार हुआ, पर मैं अपने स्टैंड से कहीं नहीं हट रहा। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि अगर मैं तमाम लीडरों की पाकिस्तानियत पे क्वेश्चन नहीं करता तो मैं उसकी पाकिस्तानी भी क्वेश्चन नहीं करूँगा। ठीक है। सो अगर हम सब यूँ रहते हैं और उसके लिए आपके पास फ़ोन लाइन है, आपके पास वीडियो लिंक है, आपके पास आप खान साहब से इंडोर्स करा दें कि शिबली फराज को मैंने बोल दिया मैंडेट, हम खड़े हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया। आप ट्वीट के दो व्यू हैं, पैरामीटर्स हैं। एक तरह मैं देखूँ, मैं कहूँ जी खान ने बड़ा कमज़ोर मैसेज दिया है, थोड़ा धीमा हो गया है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव क्यों डालूंगा? उसने कहा है पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान इकट्ठे है, पाकिस्तान अपनी फौज के साथ खड़ा है, अपने दुश्मन के खिलाफ खड़ा है, तो ये पॉजिटिव अप्रोच होगी। मैं उसको इसी तरह देखूंगा। सो इसका थ्रेट है क्या? इंडिया क्या चाह रहा है? देखिए, इंडिया तो एक ड्रामा क्रिएट करना चाहता है। अभी कल उसने बॉर्डर पर छोटे वेपन यूज़ किए, टारगेटेड, वो समझता है कोई किसी का घर वर गिरा देगा तो कुछ हो जाएगा। एयर स्ट्राइक मुझे नहीं लगता, मेरे अपना एनालिसिस है। अच्छा, आपको लगता नहीं होगी? एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते कि हमारी एयरफोर्स एक्सट्रीमली तगड़ी है। ठीक है, रॉकेट शॉकेट हो सकता है, छोटा मोटा पटाखे पुटाखे हो सकते हैं, लेकिन उसका जवाब जो है वो डबल इंटेंसिटी होगा। और याद रखें, इस बार चीफ आसिम मुनीर साहब है, एक काबिल चीफ है, तो जब इसका इम्पैक्ट आएगा तो पता चल जाएगा हिंदुस्तान को, इस मोदी को, एक क्रिमिनल कातिल को, कि इसकी औकात क्या है। देखिए, हमें सिविलियंस की तरफ हमारी अप्रोच नहीं है। हमारी कमज़ोरी नहीं है कि हम जंग नहीं जाते, हम कंडेम करते हैं किसी भी ऐसे टेररिज्म को। हमने सफ़र किया, हमने अपनी जानें दी, हमने अपनी दौलत दी, अपना पैसा दिया, अपने मुल्क का नुकसान किया, लेकिन एट द सेम टाइम ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ है। पानी पर मैं क्लियर हूँ, ठीक है। अगर वैसे इन्होंने अपनी तरह से जहारियत की, मुसलत की, तो हम डबल इंटेंसिटी से मारेंगे, घुस के मारेंगे, गर्दनों का फुटबॉल खेलेंगे। बट 24 to 36 आवर्स में अटैक का कहा तार साहब ने। देखिए, जो कि आप 24 आवर्स ही रह गए। देखिए, मैं किस फ्रंट में चीफ को क्रेडिट दूँ? इकोनॉमिक फ्रंट में उनको क्रेडिट दे रहा हूँ। आप लोगों ने जो काम किया, एंकर्स ने, तमाम चैनल्स ने, वीलॉगर्स ने, कैमरामैन ने, रिपोर्टर्स ने, ड्राइवर्स ने, फ्यून ने, सब ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंड किया, पाकिस्तान की फ़ौज को मॉरल सपोर्ट किया। और आज मैंने कल अनाउंस किया था, आज हमने इंडिया के वेबसाइट्स बैन किए जी। और ये भी चीफ के ऊपर सर आ जाता है, ये चीफ के ऊपर सर आ जाता है कि चीफ ने ये तो अभी हिसाब बराबर कर दिया है, अब हम इसका सूद लेंगे। पहले उन्होंने बंद किए, फिर हमने बंद किया, बराबर हो गया। इंडियन वेबसाइट्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए, जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया था, पाकिस्तान ने जवाब में इंडिया के साथ कर दिया। उन्होंने फिल्म भी कैंसिल किया है फवाद खान की। ठीक है, तो अब हम इसका सूद भी लेंगे। ये देखिए, तो अगले 72 घंटे से पहले आपको पता चल जाएगा। मैं तो 24 घंटे से 72 घंटे गिन रहा हूँ, वो भी चीफ का सहरा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ना कोई कॉम्पिटेंट लोग थे, ना हमारे पास इक्विपमेंट थे, ना हम उस टेरिटरी में थे, ना हमारे पास ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, बट स्टिल चीफ ने अपने हाथ में लिया है। तो हम हर कॉर्नर पे, वेदर इट्स कॉफ़ी, वेदर इट्स बिस्किट, वेदर इट्स वाटर, वेदर इट्स जाने, किसी की गर्दन, किसी की आँख, किसी की तोप, किसी का पानी, हम हर कदम पे पाकिस्तान बाय फार मारेगा। राइट। सो आपकी ये जो सबानी की पिक्चर है, आपने दोबारा ट्वीट किया, आपको याद है उसको बड़ा क्रिटिसिज्म भी किया था लोगों ने, बट यू आर सेइंग कि दोबारा यू विल गो एंड डू दैट। देखिए, मेरा क्रिटिसिज्म किस चीज़ का था? मेरे लिए तो अल्लाह ने आज भी वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तस्वीर मुझे रिकॉल हुई, मेरे अंदर प्राइड है कि मैं पाकिस्तान का एक वाहिद वज़ीर हूँ जो बॉर्डर पे गया, उसने इंडियन झंडा रोंदा अपने पैर के नीचे और अपना झंडा गाड़ा। और मैं आज भी तैयार हूँ, मुझे पता है ऐसे मौका आएगा कि जब हम उसको पैर के नीचे इंडिया का रगड़ेंगे और फिर अपना झंडा गाड़ेंगे। तो ये तो हिस्टोरिकल पिक्चर है, एटलीस्ट फॉर मी। बाकी किसी को क्रिटिसिज्म होता है, किसी को तकलीफ है तो उसको, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2019 की बात है, उस वक्त ये बहुत सारे एनालिस्ट का ख्याल था कि पाकिस्तान इंडिया वॉर जब भी होगी, थर्ड डे के बाद न्यूक्लियर की तरफ बात चली जाएगी। देखिए फरीद साहब, मैं इसको ना
उस हद तक नहीं देखता, क्योंकि आप मच्छर को जो है, इंडिया मच्छर है, उसको तोप से तो नहीं मारेंगे। अभी आपने कहा दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझो, बिल्कुल सही है, लेकिन आप मच्छर के लिए तोप तो नहीं निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत फार फेच्ड सिचुएशन है जिसको हम एनालाइज अभी कर रहे हैं, जो मुझे नज़र कहीं नहीं आती। क्योंकि देखें, पाकिस्तान की जंग इंडिया और पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, वो इस खत्ते तक जाएगी, और अगर इस हद तक चले गए तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पैदाइश है पाकिस्तान की, वो एक ऐसी जगह पर अल्लाह ताला ने पैदाइश की है कि हम एक आर्टरी हैं, उस आर्टरी से बड़े बड़े मुल्कों के दिल धड़कते हैं। अगर हमारा ब्लड चोक हुआ तो दिल बंद हो जाएंगे। तो इट्स नॉट जस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज है अक्रॉस द बॉर्डर। तो इसमें तो बड़ी हमारी क्लैरिटी है, और इसीलिए देखें, और आपको याद रखना चाहिए कि हमारे दोस्त ममालिक इसके अंदर जो हैं, पड़ोसी, वो बहुत तगड़े हैं और वो खड़े हैं, और पाकिस्तान के साथ मेजॉरिटी दुनिया खड़ी हो रही, क्योंकि इंडिया झूठा बयानिया बेच रहा है, उसके बाद एविडेंस नहीं है। हमने देखा इस दफ़ा इंटरनेशनली कोई उतनी पजीराई नहीं मिली इंडियन नैरेटिव को। इस वक्त बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? एक तो हम देख रहे हैं कि कोशिश हो रही है, फ़ोन कॉल्स हो रही हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड को इंगेज किया जाए, लेकिन बैकग्राउंड में और क्या हो रहा है? कहीं इंडिया से इंगेजमेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी के थ्रू? देखिए, नॉट एट द मोमेंट। देखिए, जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो दोस्त मुल्क हैं, वो ये समझ रहे हैं कि ये खत्ते की और दुनिया की जंग बन सकती है। तो आई थिंक उनकी बड़ी अच्छी अप्रोच है, और ये अच्छी अप्रोच है पाकिस्तान के लिए ही नहीं, इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो नहीं चाहते, हम तो मुसल्लत की गई तो हम जवाब देंगे और डबल इंटेंसिटी देंगे। पानी के ऊपर तो हम, उन्होंने एक ईंट रखी, हम तबाह बर्बाद कर देंगे उनको। तो मेरी बड़ी क्लियर लाइन है, बड़ी क्लैरिटी है मेरी इसके अंदर, इस पर तो कॉम्प्रोमाइज़। मैं उसका वज़ीर रह चुका हूँ पानी का, तो ये कोई टूटी तो है नहीं कि बंद कर दी तो पानी तो चला जाएगा, लेकिन उसके लिए एक ईंट भी रखी तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम उस डैम को इनके खून से भर देंगे इंडिया। हैमलेट में कहते हैं कि मैडनेस के साथ एक प्लान भी होता है। इस वक्त जो मोदी मैडनेस है उसमें आपको प्लान नज़र आ रहा है? इट लुक्स लाइक उन्होंने प्रिपेयर किया, एस्टिमेट किया, 2019 के बाद बहुत सोचा, तैयारी ख़रीदे, दीगर तैयारी की, अब इस टाइम पर उन्होंने सोचा कि अटैक करे पाकिस्तान। अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने, वो ये शायद कहीं मिस आउट कर रहे हैं कि इस बार चीफ कन्वेंशनल चीफ नहीं है, इस बार चीफ आसिम मुनीर साहब है, और उनकी थ्योरी, उनका माइंड, उनकी क्लैरिटी, उनका प्लान ऑफ एक्शन इज़ वेरी क्लियर एंड इज़ वेरी वोकल। उन्होंने कोई छुपाई नहीं बात, वो बड़े क्लैरिटी से गए हैं। ठीक है, उस क्लैरिटी के तहत ही उन्होंने पूरी कौम को यकजहता भी कर दी। नॉट ओनली कि हम पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट इकोनॉमिक फ्रंट के अंदर बैलेंस पोजीशन पे आ रहा है और टेक ऑफ पोजीशन पे आ रहा है, ये फ्रंट भी आजमा लें ताकि एक दफ़ा इस चैप्टर को भी हम क्लोज करें इंडिया की। अब तो मैं समझता हूँ कि उसको हम जूते के नीचे रोंदेंगे नहीं, हम उससे गटर के ढक्कन साफ़ करेंगे उस अंडे से, ये एक सिंबल बना देंगे आप। इनकी देखिए, इनका जनरल्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि अंदर से हुआ है, इनको सैक कर रहे हैं, मतलब इनकी फ़ौज के अंदर भी एक टर्मोइल हो गया है, इंडियन फ़ौज के अंदर। प्लस इनके एयरफोर्स ने घबराहट में अपने सिविलियंस के ऊपर बॉम्ब फेंक दिए। फिर इनके अपने एनालिस्ट बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को आसान ना लेना, पाकिस्तान की एयरफोर्स का रिस्पांस टाइम 2.5 मिनट है टारगेट, और लोगों को डिवाइडेड भी ना लेना। रहमान शाह ने कहा कि आप गलत समझते हैं कि पाकिस्तान डिवाइडेड। सो हमारे पास ये बड़ी ही स्ट्रॉन्ग, और देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारी फ़ौज क्यों इतनी तगड़ी है, ये वाहिद दुनिया की फ़ौज है जो अल्लाह अकबर के नारे पर खड़ी है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, ना मैं कोई मजहबी आदमी हूँ, ये अल्लाह अकबर के नारे का जज्बा जो है ना, हम वो कौम है जो टैंक के नीचे बम बांध के उड़ा दिए थे हमने, हम वो कौम है। और ये याद रखे सब कि हमारी इंटेंसिटी, हमारा थ्रेट, हमारे जज्बात, हमारी सोच अपने मुल्क के अंदर यही है कि अगर टैंक भी आएगा तो हम सीने बांध के बम उड़ा देंगे। ओके, सो पास में भी यही हुआ है कि हमेशा इंटरनेशनल पावर आती है, इंटरवीन करती है, उसी से रिकन्सिलिएशन होती है। इस दफ़ा आपको लगता है फिर यही होगा? देखिए, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन दो इट्स अ डिले प्रोसीजर राइट नाउ, मैं समझ आता इससे पहले आ जाना चाहिए था बहुत तेज़ी के साथ, लेकिन आई थिंक कि वो भी अपने वे कर रहे हैं ऑप्शंस, और उम्मीद यही की जा सकती है क्योंकि ये खित्ते से बाहर चली गई तो वो भी सब ट्रबल में आ जाएंगे, वो उनको समझना चाहिए। ठीक है, तो इस समझ के अंदर अगर एक मुस्बत किरदार अदा करते हैं पड़ोसी मुल्क, तो पूरी दुनिया के लिए वो बेहतर है और पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, और हम उसको वेलकम करेंगे। सो आपको लग रहा है कि प्रेशर पड़ जाए और इंडिया अटैक ना करे, या अब अटैक करना ज़रूरी हो गया उनके? देखिए, इंडिया के ऊपर क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, उसको छोटे मोटे पटाखे बजाने, लेकिन वो सबक तब सीखेगा जब हम उसका जवाब दे देंगे। उसका अगला जवाब आएगा, हम उससे डबल इंटेंसिटी मारेंगे, उनका उसके बाद आएगा हम डबल इंटेंसिटी शुरू हो जाएगी। देखिए, आई डोंट सी कन्वेंशनल वॉर स्टार्टिंग, क्योंकि हम लड़ाई के अंदर इनका बाप भी नहीं हरा सकता। ठीक है, ये इसलिए नहीं मैं बोल रहा कि मेरा मुल्क है, मेरी फ़ौज है, ये मेरी फ़ौज ने, मेरे मुल्क ने साबित किया। ठीक है, हम कतई नज़र के पुराने हिस्टोरिकल डिबेट और सिचुएशंस के बालातर होकर बात करें, किसी की कमज़ोरी हो सकती है, मेरी आपकी भी हो सकती है,
वो कमज़ोर शख्सियत नहीं है। इस बार मसला है कि जिसके हाथ में कमांड एंड कंट्रोल है सिक्योरिटी का, वो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। सो ये तक किया, और उसके अंदर भी वो हाफिज़ कुरान है, एक और अलग स्ट्रेंथ है। मैं फिर ये बात बताना चाहता हूँ कि मजहबी फरिश्ता भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी फेथ लाइन है, ठीक है। सो वील डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह। और ये अल्लाह अकबर का नारा है, यही फ़ौजी आप देखें सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर माँ जो अपने फ़ौजी को भेज रही है बेटे को, वो ये कह रही है जीत के आना या मर जाना, ठीक है। और वो फिर आगे से आप उन शौदाओं की फैमिली से मिले तो कहते हैं हमारा एक बेटा गया है, हमारा एक भाई गया, हमारा ये गया, तो आप हमारा दूसरा भी ले लें। ये जज्बा पूरी दुनिया में कोई नहीं। देखिए हम तो उंगली खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते सियासतदान, ठीक है। हम झूठे नारे लगा सकते हैं। तो जिनका जो क्रेडिट है, जिनको जो प्रेज़ करना है, जिनके अल्लाह ताला ने असबाब और वसीला जिनको बनाया है, उनके ऊपर हम बैक करके कौम खड़ी साथ। सो 2019 और वैसे भी जो रिसेंट वॉर्स हैं उसमें नज़र आता है एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सो ऑब्वियसली एयरफोर्स चीफ भी इस वक्त इम्पोर्टेंट है। देखिए आर्मी चीफ और सारी फोर्सेस के चीफ इंक्लूडिंग नेवी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलेवेंट, और एक से एक बढ़ के तगड़ी सिचुएशन है हमारी, और एक से एक जज्बाती हुआ है, ठीक है आदमी। सारे फौजियों ने उनका तो खून उतरा हुआ है, सारी कौम के अंदर खून उतरा हुआ है इंडिया के खिलाफ, ठीक है। कि इतना वलवला, इतना जोश, इतना जज्बा बहुत कम मुल्कों में होता है। तो मेरे ख्याल से जितनी बोल्डली और ब्लंटली हम इसके अंदर चलेंगे, जितना अग्रेसिवली हम आएंगे, उतनी अग्रेसिवली हमारी जीत होगी। राइट, विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब अब्बासी साहब की स्टोरी थी कि 2019 में जिस वक्त एयरफोर्स ने लॉक किए थे टारगेट्स, तो उनके आर्मी चीफ भी वहाँ पर मौजूद थे। इज दैट करेक्ट? देखिए बिल्कुल 100% करेक्ट बात है। और अभी भी हमने स्ट्रेटेजिक टारगेट्स इंडिया के लॉक कर दिए। तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ कहाँ से घुसेंगे, कहाँ फटेंगे, उनको अंदाज़ा ही नहीं है। देखिए हमारा विजन और हमारा प्लान ऑफ एक्शन जो है वो आप हमारी पहले अटैम्प्ट से देखें ना। पहले अटैम्प्ट में हम गोलियाँ बरसा सकते थे, हम जहाज़ भेज सकते थे, हमने उनको इकोनॉमिकली हर्ट किया। सो एक स्मार्ट इंटेलिजेंट चीफ मूव कर रहा है चीज़ों के साथ। तो जब उस इंटेंसिटी से सोच है और उन इंटेंसिटी से जब वार होगा तो हम गर्दन उतार देंगे सर से। और ये जो अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है बिल्कुल ठीक है। हमने लॉक किया था और हमने एक मैसेज कन्वे किया था कि हम इस हद तक भी आ सकते हैं, ठीक है। और वो वार्निंग शॉट काफ़ी था, उससे काफ़ी कुछ घबरा गया था, इंडिया बैक ऑफ हो गया था, ठीक है। सो आज भी हमारी पोजीशन उतनी स्ट्रेंथन है, उतनी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव नथिंग टू लूज़। एट द सेम टाइम अगर हमारे मुल्क की सालमियत की बात आ गई तो हम इंडिपेंडेंट मुल्क है, हम अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर जाएंगे। राइट। सो अब आ जाते हैं कुछ और पॉलिटिकल मामलात। जैसे कौम इकट्ठी हुई है, यही पॉलिटिकल कंसेंसस भी अगर बन जाए तो क्या आपको लगता है कि एक टेबल पे बैठ जाएंगे तमाम लीडर्स इंक्लूडिंग इमरान खान? देखिए मैंने तो राय दी और मैंने अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ से भी पहले ये फरमाइश की है, ठीक है जी। और मैं समझता हूँ कि इसका एक दूर अंदेश बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को कंसेंसस, मैं तो कह रहा हूँ जजों को भी बिठाएं, मीडिया को भी बिठाएं, सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा काम करें इस बार पाकिस्तान के लिए कि पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड हिल जाए कि इनकी सोच क्या है, इनकी डेमोक्रेसी क्या है, इनकी स्टेट्समैनशिप क्या है, इनका प्लान क्या है, इनका विजन क्या है। क्योंकि हमने इंप्रेशन और परसेप्शन और एंडोर्समेंट और कंसेंसस की जंग भी जीतनी है। वो इंडिया से नहीं हमने जीनी, हमने बैन अवी तौर पर जीतनी है। तो वाई नॉट? अगर मैं नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तानियत पर नहीं क्वेश्चन कर रहा, ना मैं जरदारी साहब की कर रहा हूँ, ना बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कर रहा हूँ, ना बिलावल साहब की कर रहा हूँ, ना शहबाज शरीफ साहब की कर रहा हूँ, ना मैं इमरान खान साहब की कर रहा हूँ, ना मैं अपनी कर रहा हूँ, ना मैं आपकी कर रहा हूँ, ना मैं ख्वाजा आसिफ साहब के आज के बयान पे मैं उनकी जज्बात की भी कदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जज्बातियत के अंदर आकर कि वो पूरा पाकिस्तान चार्ज्ड है, उनसे स्लिप हो गया या फ्रेज गलत हो गया, बट वो ये कहना चाहते थे कि हम डैमेज हुए हैं टेररिज्म के तहत, हमने कोलैटरल किया, ठीक है, उसको स्पिन किया इंडिया ने। बट अगर ये कन्वेंशनल अपने लोगों ने भी किया स्पिन, वैसे देखिए बिल्कुल किया होगा, लेकिन मैं अगर आज सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स नहीं कर रहा होता तो मैं स्टेडियम से बाहर बॉल मारता, इतनी दूर मारता छक्के इनके ऊपर कि मैं अपना सियासी सिचुएशन में इतनी बड़ी और इतनी फास्ट सेंचुरी कभी बना भी नहीं सकता था, इतनी लूज बॉल्स में। दैट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर मी। आई एम ट्राइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, आई एम ट्राइंग टू बी सेंसिबल। 10 दफ़ा सोच के आदमी बात करे। सो मैं तो जब उनकी बात को भी उनकी बात की इज़्ज़त करता हूँ और उनके जज्बात की इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ, तो मैं किसी को कैसे कह दूँ कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तानी, ये मोदी का यार है, फलाना, ये हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स हम खुद कर लेंगे। ठीक है, अब 2 सिनेरियोस देख लेते हैं। व्हाट बिल्कुल मिनिमम मामलात के साथ ये ख़त्म हो जाए, जैसे 2019 में भी हमने देखा टेंशन बहुत थी लेकिन रिजॉल्व हो गया जल्दी।
तो क्या सूरत हाल है, और अगर ये एस्केलेट करता है तो फिर कहाँ तक जाता है? देखिए, अगर मुझसे मेरा एनालिसिस पूछेंगे, मुझसे मेरी सोच पूछेंगे, मुझसे मेरा तजुर्बा पूछेंगे, जो कि बहुत थोड़ा है, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी जंग होने जा रही है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, बट हैविंग सेड दैट मैं ग्राउंड पे नहीं हूँ, मैं प्लानर नहीं हूँ, मैं चीफ नहीं हूँ, मेरे अंडर फौज नहीं है। मैं तो डेमोक्रेटिक आदमी हूँ जो आइन और कानून के तहत अपनी फ़ौज को अपना इदारा समझ के साथ लेके चल रहा है, और एज अ सिविलियन साइड हम बैक कर रहे हैं उनको। सो मैं नहीं देख रहा, मैं समझ रहा छोटे मोटे पटाखे करेंगे कि बहुत शर्मिंदा, इंडिया खुद फंस गया, उसके लेफ्टिनेंट जनरल्स को सैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर तुमने हमें सैक किया तो हम और चीज़ें खोल देंगे। तो एक बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है, इंडिया बहुत जलील ख्वार हो गया, एम्बेरस हो गया है, पूरी दुनिया में उसकी जगराइजी हो रही है, उसको लोग उसके ऊपर दान तान कर रहे हैं। बेशर्मी और बेगैरती का एक नमूना बन के निकला है ये मोदी। अब इस सिचुएशन के अंदर पटाखे पटोखे हो जाएंगे, रॉकेट फायर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, उसका जवाब हम डबल दे देंगे, वो दे देंगे, हम दे देंगे। नथिंग मोर देन दैट आई सी, एंड आई सी द इंटरनेशनल वर्ल्ड को इंटरवीन करना पड़ेगा, नॉट फॉर अस, नॉट फॉर इंडिया, अपने लिए। दूसरा ये कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ वैसी खड़ी हो गई हैं, टर्की का बयान आ गया, सऊदी अरेबिया का आ गया, चाइना का आ गया, और ये बहुत तगड़े मुल्क हैं। चाइना और सऊदी अरेबिया तो बहुत तगड़ा मुल्क है, हमारी भाईबंदी भी उनके, तो वो हमारे साथ साथ इंडिया के लिए भी बेहतरी चाहते हैं। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी बड़ी क्लैरिटी भी, वो खड़े हमारे साथ हैं। ठीक है, अगर आप चाइना की बात करें, उसमें बड़ी क्लैरिटी हमें बयान कर दिएगा, हमारे साथ खड़ा है। तो ऐसा नहीं है ना, बहुत इम्पैक्टफुल वॉर होगी, और फिर आप समझती हैं कि पाकिस्तान इंडिया की वॉर खित्ते की वॉर बन जाए, पूरी दुनिया की वर्ल्ड वॉर की तरफ हम चले जाएँ, तो मैं नहीं समझता कि इतना कोई बेवकूफ़ इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे कि इस हद तक जाने देंगे। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम जीतेंगे भी, हम जवाब भी देंगे, हम कौम को बताएंगे कि हमारी फ़ौज, हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, बट इसी हद तक रहेगा, इससे आगे एटलीस्ट मैं नहीं देखा। मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ। अलीमा खान साहब ने आज कहा दोबारा कि आइसोलेटेड कर दिया गया बानी पीटीआई को, इज ही स्टैंडिंग आइसोलेटेड? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने अपनी सियासत सस्पेंड की हुई है। मैं पॉलिटिक्स करूँगा जब मेरा मुल्क इस सिचुएशन से बाहर आ जाएगा, फिर मैं पॉलिटिकल जवाब भी दूंगा, पॉलिटिकल स्कोर भी करूँगा, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म भी करूँगा, पॉलिटिकल एंडोर्समेंट भी करूँगा, पॉलिटिकल तारीफ भी करूँगा। आज मैं सियासत नहीं कर सकता, मुझे सब कुछ इकट्ठा करना है। और आज मैंने आपको कहा ना कि बानी पीटीआई का, इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया, उसके दो पस मंजर है। एक साइड कहेगी ये बड़ी कमज़ोर है, डर गए हैं, बड़ी धीमी है, फ़ौज के पीछे खड़े हो गए। एक मेरा सोच ये होगी कि उन्होंने कहा मुल्क मेरा पहले है, हम सब यकजहती के साथ खड़े हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं। मैं इसको पॉजिटिव ट्वीट लूँगा, मैं रिस्पॉन्सिबल ट्वीट लूँगा, मैं इसको सेंसिबल ट्वीट लूँगा। सो दो जावी हैं। तो अगर मुझे सियासत करनी है, you worked with him, आपको पता है खान साहब का, मैं उनकी पाकिस्तानी भी शक नहीं कर रहा। सो आप बोल नहीं, आई नो वो फंस गए हैं, वो कीड़े मकोड़ों की बेगम की वजह से पड़ गए हैं, जलफैज की पड़ गए, उन्होंने बेवकूफ़ी कर दी, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जमहूरियत को नुकसान पहुँचा दिया, फौज को नुकसान पहुँचाया, ये सोशल मीडिया कैंपेन्स की, वो सब चीज़ अपनी जगह पर, आईन और कानून मौजूद है ना, सजा दे देंगे। बट दिस इज़ बियॉन्ड ऑल दिस। पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो नवाज शरीफ है, पाकिस्तान है तो इमरान खान है, पाकिस्तान है तो फौज है, पाकिस्तान है तो मैं और आप है। तो पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। पाकिस्तान के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई सियासत नहीं होगी, कोई लेग पुलिंग नहीं होगी, किसी की टांग नहीं खींचेंगे, किसी को ताना नहीं देंगे, हम सब वी स्टैंड यूनाइटेड, एंड दिस इज़ द राइट टाइम एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एक सुनहरी मौका है शहबाज शरीफ साहब के आगे कि वो डेमोक्रेसी को भी परवान चढ़ाएं। आपने जब ये बात की, किसी ने आपसे ऑफ रिकॉर्ड कुछ कहा हो, आपने अच्छी बात की है, एक आम तासुर ये समझा जाता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो शायद इस्टेब्लिशमेंट भी शायद वही सोचे या आपके मशवरे पे अमल करे। देखिए भाई साहब, मैं अपनी मुल्क, अपनी फ़ौज, अपनी अदलिया से बड़ा क्लैरिटी से प्यार करता हूँ, और मैं हमेशा वो काम करूँगा जो उनकी बेहतरी के लिए होगा। मैं उनकी नौकरी नहीं करता, मैं किसी के पैसे का रोटी नहीं खाता, मैंने किसी से केस माफ़ नहीं कराया है। मैं एक वाहिद सियासतदान हूँ जो फाइलें लेके किसी का दोस्त बन के काम नहीं कराता, और मुझे अल्लाह का बड़ा एहसान है इसके ऊपर। तो अगर किसी की सोच नहीं है तो ये मेरी सोच है, और मेरी मुस्बत सोच है मेरे मुल्क, मेरी फ़ौज, मेरी अदलिया, मेरे पाकिस्तानियों के लिए। और अगर आज ये बात सुनी गई तो आप डिस्कस कर रही वो डिस्कस कर रहे हैं, सब डिस्कशन का तो हिस्सा बन गया। तो दे रहा है, दुरुस्त है, हर चीज़ इंसान है, हर चीज़ मेरी राइट नहीं हो सकती, हर चीज़ मेरी रॉन्ग नहीं हो सकती। आप कहेंगे स्टैब्लिश ये लड़ाई जो हम तासुर देते हैं फ़ौज और पीटीआई की, फ़ौज और पीटीआई की, ये तासुर को ज़ाहिर करने का भी गुड टाइम है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के अपनी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं पीटीआई के साथ, वो ठीक है, राइवलरी रहती है अपोजिशन और गवर्नमेंट की, वो अपना स्कोर सेटल करे, लेकिन पाकिस्तान का पहले सोच लेना। तो स्कोर के लिए हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पाकिस्तान पड़ा हुआ है तो पाकिस्तान में होती रहेगी सियासत। आज तो आपने एक यूनिफाइड कंसेंसस इंडोर्स यूनिटी का मौका दिखाना है, ठीक है, और यूनिटी का मौका ये कि एक आदमी भी है ना कि मुझे नहीं लिया या मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सब ने आते साथ एक ही ज़बान बोलनी है, पाकिस्तान फर्स्ट,
पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे हम खड़े हैं, दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं। 3 लाइनों में चीज़ें ख़त्म हो जानी तो व्हाई नॉट। राइट, सेनेटर फैसल वारिस साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयानात पर पूरी कौम यकजा नजर आ रही है। भारत की खाम ख्याली थी कि शायद कौम इस वक्त तहरीक इंसाफ और PDM के माबैन बटी हुई है पॉलिटिकली, तो शायद वो उनको नेशनली भी बांट सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शदीद कशीदगी की वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो भी हालात हो, हमेशा कोई भी मामला हो तो कौम में हमारी इकट्ठी ही हो जाती है। नरेंद्र मोदी साहब ही प्राइम मिनिस्टर थे जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट हुई थी, मगर शायद उनको वो वाक़या भूल गया है, वो शिकस्त भूल गई है। और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व ड्रिवन पॉलिसी कैरी करने वाले नरेंद्र मोदी दोबारा गीदड़ भपकियाँ देना शुरू हो गए हैं। भारत भूल गया कि पाकिस्तानी कौम वो कौम है जो मुसीबत में हमेशा इकट्ठी हो जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा इशू है जिस पर इकट्ठे ना हुए तो फिर किसी बात पर क्या इकट्ठे होना। भारत की हालिया धमकियों के जवाब में भी तहरीक इंसाफ समेत पूरी कौम हमें अब एक पेज पर नजर आ रही है। मानी तहरीक इंसाफ ने कल अडयाला जेल से भारत के खिलाफ यकजहती का पैगाम दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र ने आज इस पैगाम को दोहराते हुए कहा कि हुकूमत को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए जिसमें बानी PTI मौजूद हो ताकि भारत को मौसर जवाब दिया जा सके। ज़रा देखिए। पाकिस्तान में हमें कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए। इस मामले में हमारा सब कुछ तैयार है और मुझे यकीन है कि अगर खुदा न खास्ता ये बेबी करता है इंडिया तो हम ऐसा जवाब देंगे कि उनको ये होश आ जाएगी। पाकिस्तानी कौम फिक्र ना करे, जब इस तरह का मामला आता है तो हम लोग किसी से कम नहीं। एक अपोजिशन के तौर पर हमने जाहिर कर दिया था, साबित कर दिया था कि हम इस पॉइंट पे यकजा हैं। अब ये साबित करना हुकूमत का काम था कि वो भी वाकई ही इसी पेज पे हैं या अभी वो सियासत ही खेल रहे हैं। तो अगर उन्होंने APC नहीं बुलाई और अगर उन्होंने इमरान खान साहब की आवाज़ उसमें ना सुनाई दुनिया को, फिर इसका मतलब है कि वो इस मामले में सीरियस नहीं है और वो अभी तक सियासत खेल रहे हैं। खान साहब की आवाज़ जब उठेगी खुद ही इंडिया क्या पूरी दुनिया लरज़ जाएगी। JUF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने भी कौमी यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया है। शेख वकास अकरम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर बानी PTI को APC में बुलाया जाता है, ये आपकी डिमांड होगी या आप समझते हैं कि दिस विल बी एन एडिशनल गुड जेस्चर फ्रॉम द गवर्नमेंट? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी APC जो कौम को यूनाइट करने के लिए और एक आवाज़ बनाने के लिए, हम आवाज़ हो के जो है वो दुश्मन के सामने खड़े होने के लिए अगर बुलाते हैं तो वो मैं बार बार कह रहा हूँ और दोबारा कहूँगा कि बेमानी और बेनतीजा होगी अगर इमरान खान साहब उसमें शामिल नहीं होंगे। नंबर 1, वो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। नंबर 2, नाहक कैद में है। नंबर 3, लोग उनकी बात सुनते हैं, लोगों ने उनको वोट दिए हैं, लोग उन पर एतमाद करते हैं। इन लोगों को लोगों ने वोट नहीं दिए, लोग इन पर एतमाद नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि ऐसी APC अगर बुलाई जाए तो खान साहब खुद उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें और इस कौम को यूनाइट करें, हम आहंगी का जो है वो पैदा करें। वो उनकी ज़ात के बगैर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। राइट, आप कैसे देखते हैं भारत की तरफ से जो मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं? आपको लग रहा है कि अटैक होगा भारत की तरफ से? ईडर धमकियाँ भारतीय हमेशा ऐसे ही करते हैं। एक वॉर हिस्टीरिया जो है वो अपने मुल्क में ये वो क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद इनका मीडिया, फिर इनके लीडर्स, फिर उनकी गुफ्तगू वो हो जाता है यूजुअली। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हालात हैं, जो वॉर मॉन्गरिंग ये जो नरेंद्र मोदी है, इससे वैसे بعید तो कुछ नहीं है। और फिर आप माशाल्लाह हमारे वज़रा के बयान भी सुन चुकी हैं इस जंग के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कोई ना कोई एक्सकम जो है वो एडवेंचर करने की कोशिश तो कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। पाकिस्तान का हर बच्चा, हर नौजवान अपनी ज़मीन की हिफाजत करने के लिए तैयार है और अगर ये ऐसी कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो दे विल बी रिस्पॉन्डेड इन द सेम मैनर। आपने कहा कि जो हुकूमत के मिनिस्टर्स ने कहा, आपको कोई इतराज़ है गवर्नमेंट की पॉलिसी पे? एज फार एज वी कैन सी उन्होंने उसको टैकल किया है, कोशिश करे हैं कि दूसरे ममालिक की इंगेजमेंट हो। बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने जवाब दिया है जो एलिगेशंस सरीहन गलत लगाए गए भारत की तरफ से। सो कैसे दिख रहे हैं आप गवर्नमेंट के रिएक्शन को? गवर्नमेंट का रिएक्शन एक डिलेड रिएक्शन था
और एक नवाज शरीफ हो या जरदारी हो जिनके अपने स्टेक्स उन मुल्कों के अंदर है, वो उस तरीके से खुल के इन लोगों को का सामना नहीं कर सकते, ना इनके सामने बात कर सकते हैं। आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब जो लंदन से निकले, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मोदी तक का नाम नहीं लिया, प्राइम मिनिस्टर अभी तक जो है उसके नाम के बगैर ही चीज़ों को खींचते चले जा रहे हैं। तो ये इन्हें एक किस्म की कोई हिचकिचाहट है, कोई चीज़ है, ऐसे लगता है कि बंदिश है, ये खुल के बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली फॉर्म 47 है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स था वो डिलेड था, एक वैक्यूम नज़र आया है, और उसके बाद भी चीज़ें जो है वो जिस तरीके से आंखों में आंखें डाल के करनी चाहिए थी, उस तरीके से ये लोगों की तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। एंड ऑब्वियसली दे आर द इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट। खान साहब हैज़ राइटली सेड कि इनको तो हम रिजेक्ट ही करते हैं और ये तो मैंडेट चोर है, मगर ये टाइम है कौम के यूनाइट होने का, और ये उनको पैगाम है कि जो कौम को तकसीम करने का अमल का हिस्सा बनते हैं, हमें उसको रोकना पड़ेगा। हुकूमत बार बार इस खदशे का इजहार करती है कि बानी PTI हमेशा मौजूदा हुकूमत और जमातों के साथ बैठने से इनकार करते रहे हैं, तो कहीं दोबारा ना कर दें कि खान साहब बाहर आए और कौम को यूनाइट करें और APC के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें। मैं नहीं समझता कि अगर इस तरह होगा तो इस मोड़ पे तारीख में खान साहब जो है वो इनकारी होंगे इन लोगों के साथ बैठने के हवाले से। मुज़ाकरात से खान साहब ने कभी इनकार नहीं किया। नेगोशिएशंस कमेटी में भी हम खान साहब की मर्जी से बैठे थे, पहली दूसरी तीसरी नशस्त तक गए, वो तो आपको पता है बाद में नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जुडिशल कमीशन का हमें बाहर आना पड़ा। तो इस मुल्क से आगे तो कुछ नहीं है। खान साहब कहते हैं ये मुल्क मेरा है और ये मुल्क है तो ये सब सियासतें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का पैगाम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे कौम के इकट्ठे होने पे जोर दिया गया है और बताया गया है कि किस तरह मोदी के इस एडवेंचर ने कौम को यकजा कर दिया है। राइट। सो भारत इस वक्त क्यों अटैक करना चाह रहा है पाकिस्तान के ऊपर? ये तो एक जवाब बनाया उन्होंने, फॉल्स फ्लैग कहा जा रहा है इस वाक़े को, बट व्हाट डू यू थिंक इज द रियल रीज़न? देखें, देयर कैन बी 110 रीजंस और सारे पे तो फिर हम बैठेंगे तो एक पूरा प्रोग्राम इसी पे हो जाएगा। दुनिया भर में तब्दीलियां आ रही हैं, रिजीम्स चेंज हो रहे हैं, भारत बहुत सी जगहों पे बहुत से फ्रंट्स पे बेनकाब हो रहा है, और पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ हैं उनके हवाले से भारत के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो शायद वो पाकिस्तान को ये साबित करना चाहते हैं इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से कि शायद पाकिस्तान इस किस्म की दहशतगर्दी में मुलविस है और हमें दहशतगर्द स्टेट जो है उसको डिक्लेयर कराना चाहते हैं। तो सारी दुनिया जानती है कि दहशतगर्दी के रास्ते में जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी है किसी और मुल्क ने नहीं दी है, और इस हवाले से पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी चाहे किसी भी सूरत में हो, किसी भी शेप एंड मैनिफेस्टेशन में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा उसको कंडेम किया, चाहे वो दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में हो। ये सिर्फ एक हमें दहशतगर्द या इंतशारी डिक्लेयर करवाने का इनका जो पुराना ख्वाब है, ये उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश कर रहे हैं। अदर देन दैट देयर कैन बी 100 मोर रीजंस। राइट। अभी हमने बात की नेशनल मोमेंट है, इकट्ठे पेज पर हो जाएं, खान साहब ने ये मैसेज भेजा, मगर मैसेजिंग फैसल चौधरी साहब की तरफ से हो रही है। आपको इत्मीनान है कि फैसल चौधरी साहब जो मैसेज ला रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला और ना हम ऐसा कोई मैसेज ऑन करते हैं। हमारे 5 से 6 वकला जाते हैं और जो नहीं जाते उनकी जगह पे भी जो जाते हैं उनमें मेजॉरिटी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जो चीज़ें हमारे तक पहुंचती हैं वो 3-4 वकला की कंफर्मेशन के बाद होती हैं कि खान साहब ने क्या कहा है। वो तहरीर जो है उसका एक एक लफ्ज़ नाप और तोल के जो है वो किया जाता है। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सैडली जिनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं सकते, और जिन लोगों को मैनेज किया जाता है वो अंदर चले जाते हैं। और फिर बाहर आके जिनका नाम लिस्ट पे नहीं होता वो कैसे उनकी मुलाकात हो जाती है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना, ये वकला तो सारे वहाँ पे खड़े होते हैं और खान साहब से मिलना भी चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश भी होती है और वो सारे को रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। बट अनीमा खान ने कहा जिन लोगों को मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है या जहाँ से वो इजाज़त लेकर आते हैं वहाँ हमारी सिफारिश कर दें। आप भी करवाना चाहेंगे सिफारिश ऐसे?
नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ से वो सिफारिश करा के वो लोग अंदर जाते हैं, वहाँ से तो सिफारिश हमने करानी होती, तो फिर हम रपोशियाँ तो ना गुजारते, कुर्बानियाँ तो ना देते, फिर तो गल साड़ी मुक गई होती कदम। तो अगर हमने असूली तौर पे मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो हमने उसकी कीमत भी अदा की और कर भी रहे हैं। तो हम किसी की सिफारिश नहीं चाहिए लेना चाहेंगे, ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है। और ये इमरान खान साहब का राइट है बहसीत प्रिजनर्स के, उनसे वो मुलाकातें ना रोकी मैं। ये तो बेहयाई है ये जो कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं। बट बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात हो रही है। नहीं, इस दफा नहीं मिल सके, बट गए, पहले हो गई, नाम था, बट ही कुडंट सी इट, उनको नहीं मिलने दिया। राइट। सो तहरीक इंसाफ की जानिब से आपसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात पूछी थी कि स्पीकर साहब के लिए तहरीक में इत्मीनान लाने का प्लान था, लेकिन अब जो पाक इंडिया ताल्लुकात में हो रहा है, आप रोकेंगे किसी तहरीक को या इस किस्म की किसी भी अदम इत्मीनान की रेजोल्यूशन को? नहीं, इस पे अभी तक कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई, मगर अगर हो जाती है तो स्पीकर के ऊपर अदम एतमाद करने में उसमें किसी टाइम के ऊपर कोई ख़ास कदगन या वक्ती हालात नहीं है। इस सारे हालात के अंदर इन्होंने रोटी खानी तो बंद कोई नहीं की, ना इन्होंने अपने लले तलले बंद कीते ने। तो अगर रोटी भी नहीं बंद की और लले तलले भी उसी तरह चल रहा तो एतमाद का भी अगर असी पेश करना है तो कर छड़ेंगे, की फर्क पड़ता है। राइट। हमारे प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान साहब थे, उन्होंने कहा कि जो लोग बहुत ड्यूरेस में गए हैं और अक्सर लोग ऐसे ही गए हैं, मजबूरी में गए हैं 9 मई के बाद, उनको वापस आने देना चाहिए पार्टी में। ये अली मोहम्मद खान साहब की नहीं, ये इमरान खान साहब की डिस्क्रेशन है। ही हैज़ अ राइट टू हैव हिज ओन ओपिनियन, बट दिस इज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इमरान खान साहब कि वो किसको अलाउ करते हैं अपनी पार्टी में वापस और किसको नहीं। राइट। एक रीसेंट एग्जिट शेर अफजल मरवत का था, वो बड़े बयानात देते हैं पार्टी के ख़िलाफ़। कोई फ़र्क पड़ता है आप लोगों को? आप समझते हैं कि उनको ऐसे स्टेटमेंट्स देने चाहिए, ओपन डिस्कशन करनी चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी के साथ रहे हों और लंबा अरसा रहे हों और आप ये समझते भी हों कि शायद आपके साथ कोई ज्यादती हो गई है, तो फिर उसके बावजूद भी आपको इस किस्म की किसी गुफ्तगू में इंडल्ज नहीं करना चाहिए जिससे आपके साथ साथियों की जागसाई का खदशा हो या उनका नुकसान होता हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए और इज्तनाब में ही इज़्ज़त है, उसी में एहतराम है। जितना आप अपने दोस्तों के बारे में अब बात करते हैं, लोग आप पे कल क्वेश्चन मार्क करेंगे कि यू आर ऑल्सो देयर टुडे, यू सी इट बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट पार्टी, बट व्हाट हैपेंड देन। सो ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, मेरा तो ये बिरादराना मशवरा होगा। राइट। भारत की जो जारहाना हिकमत अमली है, हमने 2019 में भी एक ऐसा ही सर्च देखा था, उस पीटीआई की गवर्नमेंट थी। इस वक्त की हुकूमत ने कैसा हैंडल किया इसको? किस चीज़ को हैंडल किया जी? पाक भारत टेंशन। वो तो मैंने आपको बताया नहीं जी कि क्या हैंडल किया। पहले पूरा 1.5 दिन जो है इनका कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं था। they didn't respond, मतलब है कि कोई रिस्पॉन्स 1.5 दिन नहीं होता। एक वैक्यूम लीडरशिप का हमें नजर आया। उसके बाद इन्होंने एक रटी रटाई आके स्टेटमेंट पढ़ दी थी, वजीर बैठ कर उन्हें कहानियां सुना दी। तो इट कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ बेटर मैनर, बट अगेन खान साहब हैज राइटली सेड कि इन दोनों में वो कैपेसिटी नहीं है, ये मैंडेट चोर है कि ये उस तरीके से पाकिस्तान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें जिस तरीके से ड्यूली इलेक्टेड आदमी कर सकता है। राइट। शेख वकास अकरम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। जंग का हमेशा नुकसान ही होता है, कोशिश ये करना चाहिए कि पीसफुल टाइम्स में रहें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।